Please settle down so that we can start our class. जल्दी से आप लोग बैठ जाइए ताकि हम अपना कक्षा शुरू कर सकें। So before the break, we were looking at the example of a cake which has been cut into 3 portions. हमने एक उदाहरण को देखे थे ब्रेक में जाने से पहले, एक चॉकलेट केक 3 भागों में कटी हुई। So 2/3 of the substance was on one table जो एक टेबल पर जो है 2/3 भाग रखी हुई थी of the substance. उस 2/3 चीज of का the substance was on this table, उस चीज का जो है जो सार का 2/3 भाग जो है वहां रखी हुई थी, and 1/3 of the substance was on the other table. और 1/3 भाग जो है दूसरा टेबल पे रखी हुई थी। And so we see that this chocolate substance got divided into 3 parts. तो हमने कहा था कि ये चॉकलेट केक का जो सार है वो जो 3 भागों में काटी गई। But divinity is not like that. लेकिन ईश्वर तो ऐसा नहीं है, Because we said in the entire universe there is only one single divine substance. क्योंकि हमने कहा कि पूरा ब्रह्मांड में जो है एक ही जो है ईश्वरीय सार है, वो हमारा जीवित परमेश्वर। So the divinity does not get divided between the 3 persons. ईश्वर तो जो है ये 3 व्यक्तियों के बीच में विभाजित नहीं किया गया। When Jesus came down to the earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, this is what it says about him in Colossians 2 verse 9. कोलोसियों के दूसरा अध्याय के 9वां वचन ऐसा बताता है। We already read it out, but let's read it again. हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, ये फिर एक बार इसको पढ़ें। कोलोसियों दूसरा अध्याय के 9वां वचन, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। In this verse, it says that in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. तो यहाँ बताया गया कि यीशु मसीह में जो है सारी ईश्वर तो जो है उसके देह में वास करती है। It doesn't say 1/3 of the divinity is dwelling in Christ. उसमें ये नहीं बताया गया कि ईश्वरत्व का 1/3 भाग जो है यीशु मसीह में है। It says the fullness of the deity was living in Christ in bodily form. यहाँ बताया गया कि ईश्वरत्व का पूर्ण तरीके से जो है यीशु मसीह के शरीर में वास करता है। So when Jesus Christ was on the earth, he was not 1/3 divine, he was 100% divine. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो 1/3 ईश्वरत्व नहीं थे, वो 100% ईश्वरत्व थे। God the Father was sitting on the throne at that time. पिता परमेश्वर जो उस समय सिंहासन पर बैठे थे, And he had 100% divinity in him. और पिता के पास भी 100% ईश्वरत्व था। In the same way, the Holy Spirit also is 100% divine all the time. इसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी जो है 100% ईश्वरत्व हमेशा ही है उसका। So the divinity does not get split up into 3 portions ever. कभी भी ये त्रिएक जो ईश्वरत्व जो है 3 भागों में नहीं बंटती है, Because there is only one single divinity in this universe. क्योंकि इस ब्रह्मांड में एकमात्र जो ईश्वरत्व है, And all 3 persons contain that full divinity. और हर एक जो 3 व्यक्ति है वे जो है पूर्ण ईश्वरत्व को रखते हैं। And that is why when Jesus Christ died on the cross, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, God did not die. परमेश्वर नहीं मरे, Because God the Father is still on the throne and he is 100% divine. क्योंकि उस समय परमेश्वर पिता जो है सिंहासन पर थे और 100% ईश्वरत्व उनमें थी। The Holy Spirit also was 100% divine. और पवित्र आत्मा भी 100% ईश्वरत्व थे। So yes, in his humanity, Jesus Christ died, हाँ, यीशु मसीह जो है अपनी मानवता पे मनुष्य के रूप में वे मरे, but God did not die. लेकिन परमेश्वर नहीं मरा। And so that is why it's important for us to understand that the whole divinity never gets divided. There is only one divine being. तो इसलिए जो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ईश्वर तो कभी भी बटी नहीं जाती, केवल एक ही ईश्वर तो है। Okay, so the third wrong teaching that some people believe, और तीसरा जो गलत उपदेश को लोग जो विश्वास करते कुछ लोग, that is what the Jehovah Witnesses believe. जो यही है यहोवा विटनेस उनका विश्वास है। So we already looked at this. हम पहले से इसको देखे हैं। They take that verse in Colossians 1:15, वो कुलुसियों पहला अध्याय का 15 वचन को लेते हैं,
where it talks about Jesus Christ being the firstborn over all creation. तो वहां बताया गया कि यीशु मसीह जो है सारा सृष्टि पर पगलौटा है, And so they say that Jesus is a created being, so he's lesser than the Father. इसलिए वो बताते हैं कि यीशु मसीह जो है सृजित है व्यक्ति है, इसलिए वो पिता से कम है। And we know, we've already talked about that. We know what the real meaning of that verse is. हमने पहले से इसके बारे में बात की है, इसलिए इस शब्द का क्या असली मतलब है हम जानते हैं। So these are the three main wrong teachings about the Trinity. ये जो है त्रिएक के बारे में तीन मुख्य गलत समझ है। Now people use examples to try to explain the Trinity. अभी लोग जो है कुछ उदाहरणों को इस्तेमाल करते हैं त्रिएक को समझाने के लिए, But all those examples are very limited लेकिन वो सारे उदाहरण जो है बहुत ही सीमित है, because they are not bringing out the truth about the divinity. क्योंकि वे जो है त्रिएक के बारे में सत्य को नहीं ला रहे हैं। For instance, people say that the Trinity is like an egg. तो उदाहरण के लिए वैसे लेते हैं कि त्रिएक जो है एक अंडे के समान है। You know, the egg has got three parts. अंडे में तीन भाग होता है। You have the shell, and then you have the white portion, and then you have the yellow yolk. तो आप अंडे में जो बाहर का वो जो है, अंदर में जो सफेद भाग है, फिर उसके अंदर पीला वाला भाग है। But that is not a good explanation of Trinity, लेकिन त्रिएक के लिए बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है वो, because those three portions are made of three different substances. क्योंकि वो तीनों भाग जो है अलग अलग चीजों के द्वारा बनी गई है। The sour of the shell is different, the sour of the white portion is different, the essence is different. तो वहां देखेंगे जो बाहरी जो खड़ा वाला जो भाग है उसका सार अलग है, अंदर जो सफेद भाग है उसका सार अलग है, जो अंदर पीला वाला जो है उसका भी अलग सार है। In the same way, they try to use the example of water. इसी प्रकार से वो पानी का भी उदाहरण देते हैं। They say that water can be solid, it can be liquid, and it can also be vapor, gas. वो बताते हैं कि पानी जो है जो कड़ा बनता है बर्फ में, फिर पानी सरल परत में आता है, फिर जब भाप रहती है। So this is also not a good example, ये भी जो है अच्छा उदाहरण नहीं है, because the water cannot be solid and liquid at the same time. क्योंकि पानी जो है एक ही समय में वो तरल और खड़ा नहीं हो सकता है। It can be solid and then afterwards it can become liquid, but in the same moment it cannot be both. एक ही समय में वो दोनों नहीं हो सकता है। वो बर्फ रहेगा, कुछ समय के बाद वो गल सकता है, पिघल सकता है, लेकिन एक ही समय में दोनों नहीं रहेगा। But when we look at the triune God, लेकिन जब त्रिएक परमेश्वर के बारे में देखते in हैं, that one moment, all the three persons are there as three separate persons. उसी एक पल में जो है वो तीनों व्यक्तियां जो है अलग अलग व्यक्तियों में है। Okay. Another example that is used is of the different roles which a human being takes. तो और एक जो उदाहरण जो लेते हैं, जो मनुष्य लोग अलग अलग भूमिका को लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। They say a person can be a father, he can be a son, and he can also be a friend. तो ऐसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। But he cannot be all those, he cannot function as all those three things in the same moment. तो ये तीन अलग अलग भूमिका को हमने देखे हैं, वो जो है एक ही पल में इन तीनों में कार्य नहीं कर सकते हैं। If he's sitting with his, elderly father as a son and talking to him, यदि वो अपने जो बुजुर्ग पिता के पास बैठ कर एक पुत्र के रूप में बात कर रहा है, at the same moment he cannot be in his house playing with his child as a father. उसी पल में जो है अपने छोटे बच्चे के साथ एक पिता के रूप में खेल नहीं सकता है। So in that one moment he cannot function as both son and father. एक पल में ही वो पिता और पुत्र ऐसा काम नहीं कर सकता है। But when we look at the triune God, लेकिन जब हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में देखते हैं, we have the Father, the Son, and the Holy Spirit working in the same moment as three separate roles. हम देखते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है उसी पल में तीन अलग अलग भूमिकाओं में काम करते हैं। So we can, in our humanness, we can never fully understand the Trinity. ये हमारे मानवता में जो है ये त्रिएक को पूर्ण तरीके से समझ नहीं सकते हैं, But by faith, we choose to believe that what the Bible says is true. लेकिन विश्वास के द्वारा हम बाइबल जो कहती है वो सच ये मानने का चुनाव करते हैं। Someone said this
saying about the Trinity. किसी ने त्रिएक के बारे में इस कहावत को कही है, They said, try to explain Trinity and you will lose your mind. उन्होंने बोले कि आप त्रिएक के बारे में समझाना शुरू करेंगे तब जो है अपना बुद्धि की उस समझ को खो दोगे। But if you deny the Trinity, you will lose your soul. लेकिन आप त्रिएक का इनकार करोगे तो आप जो है अपना प्राण को खो दोगे। So, because you see in John chapter 5 verse 18, यदि आप देखेंगे यूहन्ना 5 के 18 वचन में, the people were very angry when Jesus said, I am equal with the Father. जब यीशु ने मैं पिता के साथ समान है कहे तो लोग जो है बहुत गुस्सा हो गए थे। They believed that Jesus is just a human and he's not equal with God. वो ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह केवल एक मनुष्य है, वो परमेश्वर के साथ समान नहीं है। And they had to pay the punishment for their unbelief. उन्हें जो है उनका अविश्वास के कारण उस दंड को भुगतना पड़ा। Because it says in Matthew 16, 15 and 16, इसलिए मत्ती 16 के 15 और 16 वचन में ऐसा बता रहा है। you know, Simon Peter is talking in those verses. वहां जो है सिमोन पतरस बात कर रहा है। He says to Jesus, you are the Messiah, the Son of the living God. वो बता रहा है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। So these people who wanted to stone Jesus, they refused to believe in his divinity. जो ये लोग जो यीशु पर पथराव कर रहे थे वो जो यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास करने का इनकार किया उन्होंने। But Simon Peter, on the other hand, he believes in the divinity of Jesus. लेकिन सिमोन पतरस जो है यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास करता है। Simon Peter was able to gain the benefit of his faith, and now he's enjoying, you know, being in God's presence. तो शमौन पतरस जो है अपना विश्वास को कारण जो है अभी जो यीशु मसीह के उपस्थिति में वो अपना आनंद मना रहा है। So if we say, oh, because I'm not able to understand what they are saying over here, I'll not believe it. तो यदि हम कहते हैं कि वो लोग जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा है इसलिए मैं इसको विश्वास नहीं करूंगी, You will lose your soul. आप अपना प्राण को खो दोगे। So even though we don't understand Trinity, by faith, we choose to believe in the Trinity. तब भी जब हम ये त्रिएक को समझ नहीं पा रहे हैं तब भी जो है हम विश्वास के द्वारा इसे भरोसा करने का चुनाव करते हैं। If you have any questions, now is the time to ask, or otherwise we'll move into the next doctrine. यदि आपका पास कोई सवाल है तो अभी पूछने का समय है, अगर नहीं है तो हम अगला सिद्धांत पर जा रहे हैं। So if you have any question, you can just put up your hand. यदि आपका कोई सवाल है तो आप अपना हाथ खड़े करें। In the same way, those who are online, if you have any question, you can either just, unmute and start talking, or you can type in the chat. ऑनलाइन में जो है उनसे भी हमारा यही निवेदन है, यदि आपका सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछना शुरू करें या तो आप चैट में भी डाल सकते हैं अपने सवाल को। Otherwise, we'll move into the doctrine of the Word of God. तो नहीं है तो क्वेश्चन। Okay, yeah, go ahead. If you have the mic, it will help when you're asking the question. मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, तो आपने बहुत सारे एग्जांपल दिए कि ट्रिनिटी इसके साथ मैच नहीं होता, तो अगर हमें किसी को समझाना होगा तो ट्रिनिटी का परफेक्ट एग्जांपल कौन सा यूज करें हम? How can we explain others? Trinity. How can we explain it? The only explanation you can give is, the things which we talked about in detail. तो आप जो है कि जो आपको समझा सकते हैं वो जो है बहुत ही विवरण से। I mean, if you really want them to understand, you would have to give the full explanation the way we gave it in the class. अभी जैसे हमने कक्षा में बताए हैं उसी प्रकार से आपको बताना पड़ेगा उनको पूर्ण समझ के लिए। But if you want to use just one small example, यदि आप एक छोटा सा उदाहरण को इस्तेमाल करना चाहते हैं, there is no correct example. ऐसा कोई सही उदाहरण नहीं है। In physics, there is one example which they tried to use. फिजिक्स में एक उदाहरण है जो कोशिश करते हैं उसका इस्तेमाल करने की। Unless you're really talking to someone who knows physics, maybe you should not use that example. तो आप अगर फिजिक्स जानते हो उनसे बात करने से ठीक है, अगर नहीं है उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। It talks about how a particle of light is both a photon and it is a wave at the same time. In one single point of time,
light can be both a wave and a photon. So they say, they say Trinity is something like that, very complicated. Leave it. We don't want examples like that. So yes, you can try to use, but there's no proper example to explain the Trinity. Yeah. So it's difficult. It's very difficult to give a. So all we can say is, by faith, the Bible says this. So brother, I'm believing this. So if someone asks you a question, you just tell them, in my human mind, I cannot fully understand, brother, but the Bible is saying this, so that is why I am believing it. So you can maybe just simply tell them like that. तो आप इतना ही बता सकते हैं, बाइबल इसको बता रही है इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, तो ऐसा आप समझा सकते हैं. So you can use example of the egg and the water, but they're not very correct examples. आप अंडा और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सही उदाहरण नहीं है. And then when you become a physicist, then you can talk about light being photon and wave and all that. Yeah. So yeah. So Madam, और एक क्वेश्चन है. Yes. Go तो जो जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर कहता है आओ हम बनाएं, है ना, ahead. लेट अस मेक, बट आइज़ाया जो 45:5 और 6 में परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वहां पे कैसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं और वहां पे हम? So in Genesis 1:26, he's talking about creating humans in his image. तो यहाँ उत्पत्ति 1:26 में जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है कि मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में बना रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं. So he wants to talk about, himself in all of his completeness. So he says, let us make man in our image. तो अपना पूर्णता के बारे में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि आइए हम अपने रूप में मनुष्य को बनाएं. Okay, so over there he uses the plural to talk about himself. तो वहां जो है बहुवचन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो. And so, but in most of the scriptures, he'll simply refer to himself as I, as one single person. तो कई सारे वचनों में जो है अपने आप को एक वचन में इस्तेमाल करते हैं मैं करके. So in the Isaiah thing, when he says that there is only one God, जब असाया में हम देखते हैं कि एक परमेश्वर है से, he's talking about how he is only one single divine substance. वो इस बात को बता रहे हैं कि वो कैसे एक ईश्वरत्व का सार है. Because people of the world are saying, oh no, there are many gods, many divine beings. क्योंकि संसार में जो रहते हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर है, बहुत सारे ईश्वरत्व है. So according to the people of the world, there's one divine substance over here, there's one divine substance over here, and another one over there. तो यहाँ संसार के लोगों के अनुसार जो है एक जगह पे एक ईश्वरत्व है, दूसरे जगह में दूसरा ईश्वरत्व है, तीसरा ऐसे अलग अलग जगह में ईश्वरत्व So in बताते हैं. Isaiah, when God is saying God is one, he's saying there is one single divine substance. जब यहाँ ईसाया में बता रहे हैं कि एक, तो वो बता रहे हैं कि वो ही एक केवल एक ईश्वरत्व का सार है. Does that help? Does that answer help? आपको इस सवाल का जवाब ठीक है? जिन्होंने भी पूछे, आप पूछे. हेलो मैम, एक क्वेश्चन है. यीशु से जब लोग पूछते हैं कि अंतिम दिन कब है, तो यीशु कहते हैं कि वो खुद नहीं जानते हैं, सिर्फ केवल पिता, ना ही पवित्र आत्मा और ना ही यीशु, सिर्फ और सिर्फ पिता जानते हैं. तो ये जब स्टेटमेंट उठता है तो उसको हम कैसे आंसर दें? Yeah, so the question is asking about the humanity of Jesus. This question is asking. Yeah. Jesus is No, saying. I got it. I'm giving the Okay. answer. That in that particular verse, Jesus is, expressing his humanity. उस वचन में यीशु अपना मानवता का मनुष्य है इस बात को व्यक्त कर रहे हैं. So you will be discussing Christology in great detail next week. अगले सप्ताह क्रिस्टोलॉजी में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आप इसको देखेंगे. When Jesus came on the earth, he chose to be 100% human. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो वो जो है 100% मनुष्य होने का चुनाव किए. He continued to be 100% divine, वो लगातार 100% ईश्वर भी थे, but he did not use his divinity at all when he was on the earth. लेकिन जब वो पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपना ईश्वरत्व का कभी भी इस्तेमाल नहीं किए. And so in the same way human beings are limited in their knowledge, Jesus also allowed himself in his humanness to be limited in his knowledge.
तो क्योंकि मनुष्य जो है अपने ज्ञान में सीमित है, इसी प्रकार से यीशु मसीह भी मनुष्य बनकर आया, इसलिए अपने उसके ज्ञान में वो सीमित था। So we will touch upon this very briefly when we do the doctrine of Christ this week. इस सप्ताह जब हम मसीह के सिद्धांत के बारे में देखेंगे, उसको सारांश में हम देखेंगे Very briefly this week, but next week it will be fully discussed in detail. इस सप्ताह जो है हम सारांश में देखेंगे, लेकिन अगला सप्ताह जो है बहुत ही विस्तार से उसे देखा जाएगा। Yeah. मैम Any other questions? मैम एक्चुअली और एक है, जैसा कि जब ये आंसर हम लोग देते हैं तो और एक काउंटर क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जैसा कि उनको कोई भी समस्या, वो क्या करते थे, सारा रात प्रेयर करते थे, परमेश्वर से शक्ति मांगते थे, और वो होते हुए भी मनुष्य 100% होते हुए भी वो पवित्र आत्मा भी उनको सहायता करता था। और हम कहते हैं कि वो सच में परमेश्वर पूरा 100% है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब ये काउंटर क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से, जब यीशु मसीह जब खुद परमेश्वर है तो ऑफ कोर्स वो प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ शक्ति ले रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम वो पवित्र आत्मा का भी उनको मदद चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वही चीज अभी मैम बता रही थी, जब वो मनुष्य थे तो ईश्वरत्व का किसी भी चीज को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए पृथ्वी पर होते हुए, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ के कारण, प्रेयर के कारण ही उस काम को किए थे करके। तो आने वाले दिनों के बारे में जब उन्होंने बताया, उस टाइम पे जो उन्होंने बताया है वो क्या है, मतलब पवित्र आत्मा की हेल्प से ही बताया है? पवित्र आत्मा से, जी पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह पूरा पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाए चले हैं, उन्हीं से पाकर किए हैं, तो Okay, thank you, वो ma'am. ईश्वर मैम एक और सवाल है, जब आप बोल रहे Wait, हैं wait, no, let's finish this question here. After that, we'll small address your question. Continue. ओके। Okay. So, ये आप बोल रहे हैं जब यीशु मसीह दुनिया में just थे a और minute, परमेश्वर का I'll किसी add भी to प्रकार that का सामर्थ answer. को A minute, please. प्रयोग नहीं किए हैं, थोड़ा सा रुक तो जाइएगा, पापों को क्षमा क्यों किया? थोड़ा रुक जाइए, आपको अभी समय दे रहे हैं हम। यहाँ There's a lot of feedback from this mic. If someone could just, call someone from the IT team. Sorry, brother. Just hold on a minute. आप थोड़ा Yeah. देर रुक जाइए, हम just यहाँ to- सवाल just का to जवाब add- दे देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। Just to answer your question, Satan comes to Jesus and says, prove to me that you're the Son of God. Turn these stones into bread. Jesus refuses to use his divine power. He refuses because he came with a purpose to the earth, to be 100% human, to be our representative and to die for us. If he's continuing to use his divinity, how can he be our representative? So he chooses not to even touch his divinity, during his time on the earth. So these things will be discussed in greater detail during the Christology class. And, if you have further questions at that time, you can definitely ask ma'am, who will be teaching that. Yeah, okay. तो और भी सवाल आए तो आप क्रिस्टोलॉजी पढ़ते समय पूछ सकते हैं। Yes, brother. Now you can unmute and ask your question, please. Yeah. ऑनलाइन भाई आप पूछ सकते हैं अभी आप। जी जी, आप मैम अभी बता रहे थे कि यीशु मसीह संसार में रहते हुए परमेश्वरत्व को उसने नहीं उपयोग किया, वो एक मनुष्य के रूप में थे। तो बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो जन्म से अंधा था, और एक व्यक्ति और हैं जिसको 4 लोगों ने खाट पे उठा करके यीशु मसीह के पास ले आया था। तो पहले यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया। तो यदि परमेश्वर पाप को क्षमा करता है, तो यीशु मसीह जब मनुष्य थे और मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर थे, तो वो पाप को क्षमा कैसे किए, क्यों किए? Yeah. So in Colossians 1:15, we saw the fact that Jesus did not lose his divinity in any way. तो हमने कुलुस्सियों पहला अध्याय का 15 वचन में हमने देखे हैं कि यीशु जो है अपना ईश्वरत्व No, sorry, not Colossians. What was it? Colossians 2:19. 1:9 Colossians 1:9, is 2:9. it? Colossians 1:9. We saw that, the entire divinity was there in Jesus in bodily form. तो हम देखें कि यीशु मसीह के अंदर जो है संपूर्ण ईश्वरत्व उनके सदैव थी। So his status
his divine status was not lost in any way. उनका ईश्वरत्व का जो स्तर था किसी भी प्रकार से खोया नहीं था. So in his divine status, he chose to forgive that man's sins. उनका जो ईश्वरत्व का वो स्तर था उसमें जो है उस व्यक्ति को क्षमा करने का उन्होंने चुनाव किया. His status as divine God never changed. एक ईश्वरीय परमेश्वर ये जो स्तर जो है उनका कभी नहीं बदला है. The abilities of divinity, he did not use those abilities. उन योग्यताओं को या तो करने की क्षमता जो है उसे जो है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया. But his status as God continued every single moment. लेकिन उनका जो परमेश्वर होने का वो स्तर जो है हर पल लगातार जारी रहा. Okay, so this is something that you will be taught in greater detail in the Christology course next week. अगला सप्ताह क्रिस्टोलॉजी के विषय में जो है इसको बहुत ही विवरण के साथ आपको पढ़ाया जाएगा. Does that answer help? ये जवाब से आप ठीक है? या Thank you. Okay, yeah. So I think there'll be a lot of questions next week when Christology is being covered. मुझे लगता है कि अगला सप्ताह जब क्रिस्टोलॉजी पढ़ाया जाएगा बहुत सारे सवाल होंगे. One simple example which helped me a lot is this. एक साधारण उदाहरण जो मुझे सहायता की वो ये है. Imagine a Mercedes Benz. It's considered a very powerful car. एक जो कीमती कार Mercedes Benz बोलते हैं उसके बारे में कल्पना कीजिए. Your ordinary cars will have an engine which is nice. आपका जो साधारण जो कार है उसके अंदर इंजन होती है वो भी अच्छा है. But the Mercedes Benz, that engine is completely at a different level. लेकिन Mercedes Benz का जो इंजन है बहुत ही बिल्कुल ही अलग स्तर का है. The speed at which you can move in a Mercedes Benz, you can never move in an ordinary car. जो Mercedes Benz के स्पीड पे जो गति पे आप जाते हो वो जो है दूसरे साधारण कार पे आप नहीं जा सकते हो. Now let us imagine that this Mercedes Benz is covered in a plastic cover, an ordinary plastic cover. तो ऐसा कल्पना करके देखिए ये Mercedes Benz जो कार है एक साधारण प्लास्टिक के पन्ने से ढका हुआ है. To stop the rainwater from touching the car, people wrap it in blue plastic cover, right? तो बारिश उस पर ना गिरे करके ब्लू कलर के पेपर से उसको ढकते हैं. So when somebody is looking at that car, they'll think, there's some ordinary car sitting over there. क्योंकि ढका हुआ है इसलिए वो ठीक से देख नहीं पाएंगे इसलिए वो बताएंगे कुछ तो साधारण गाड़ी वहां खड़ी है. But inside that car, inside that plastic, there's a powerful engine. लेकिन उस जो ढका हुआ के हटा के देखें तो पता चला कि एकदम सामर्थ्य इंजन है उसमें. Jesus Christ put on humanity when he came to the earth. तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो वो जो मनुष्यत्व को पहन लिए थे. And so when people would look at him, they saw, this humanity in which he has wrapped himself. तो जब लोग उसे देखते तो देखे तो वो जो है यीशु मसीह जो अपने आप को मनुष्यत्व में जो ढके थे ये तो पहने हुए थे उसको देखें. So they would look at him and say, oh, he's an ordinary man. तो जब उसके ओर देखते तो कहते सोचते थे कि ये तो साधारण व्यक्ति है. But in your Colossians 2:9 it says the entire fullness of the deity was there inside his bodily लेकिन form. कुलुसियों 2:9 बता रहा है कि पूर्ण ईश्वर तो जो है उसके अंदर वास करता था परिपूर्णता से. And so they did not realize, by looking at him on the outside, who he is on the inside. तो वे जो है उसको बाहरी तौर पर देखकर वो कौन है अंदर से वो कौन है इस बात को वो पहचान नहीं पाए. So the Mercedes Benz status didn't change just because it's covered with a blue plastic. तो Mercedes Benz कार जो है एक ब्लू कलर के कागज पे ढकी है इसलिए उसका स्तर जो है बदल नहीं गया है. But it continued to be completely powerful. वो लगातार जो है पूर्ण तौर पे वो जो है सामर्थ्य रहेगा. So Jesus, he never lost his status. He continued to be fully divine. तो इसलिए यीशु भी जो है अपना जो स्तर है उसको कभी भी नहीं खोए वो लगातार ईश्वर थे. But he put on humanity and allowed himself to bear the limitations of humanity. लेकिन वो जो है मनुष्यत्व को पहन लिए और मनुष्य का जो सीमा को जो है उसे सहने लगे. Because only a human can represent another human. क्योंकि एक मनुष्य ही एक दूसरा मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है. Let us say that this is a very silly example.
ये बहुत ही साधारण मजाक का ऐसा उदाहरण है, Okay, it's not a good example. ये अच्छा उदाहरण नहीं है। Let's assume that the camels need to be saved. Camel. जो ऊंट को जो है बचाया जाना चाहिए, ऐसा अनुमान कर लीजिए। And so I will go and say, I will be a representative of the camels. तो मैं जाके बोलूं कि मैं बताऊं कि ये ऊंटों का प्रतिनिधि मैं बनूंगी, And then the judge will say, you're not a camel. How can you represent camels? तो जज बताएंगे कि तुम तो ऊंट नहीं हो, ऊंट को कैसे बचाओगी। If I want to be a real representative, one of them, I also need to be a camel. यदि मैं उनमें से एक प्रतिनिधि बनना है तो मुझे भी जो है उनमें से एक ऊंट मुझे भी बनना होगा। Jesus Christ chose to become our representative and take our sin, our punishment upon him. तो यीशु जो है हमारा प्रतिनिधि बना, उन्होंने हमारा पाप को, हमारा धर्म को अपने ऊपर ले लिए। If he is God and we are humans, he cannot take our sin upon him. यदि वो परमेश्वर है, हम मनुष्य है, वो हमारा पाप को अपने ऊपर नहीं उठा सकते He हैं। had to become 100% human like us to take our punishment upon him. तो हमारा धन को उनके ऊपर लेने के लिए उन्हें जो 100% मनुष्य बनने की जरूरत है। So these are all details which are contained in your doctrine of Christology. ये सारे विवरण जो है आपका जो मसीह का या तो क्रिस्टोलॉजी जो पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। We will be covering some of that in our doctrines of salvation and justification. हमारा भी उद्धार और धार्मिकता ठहराया जाने का उस सिद्धांत पे हम देखेंगे। So we will cover some of these things in the later days. तो आने वाले दिनों में जो है इनमें से कुछ चीजों को हम भी पढ़ेंगे। Now the very sad news is that doctrine of word of God has got delayed. ये दुख की बात है कि परमेश्वर का वचन का सिद्धांत जो है उसको पढ़ने के लिए हमें देरी हो गई Now है। we have less time to cover this doctrine. हमें जो अभी कम समय बचा है इसको पढ़ने के लिए। So we will look at whatever details we can. हम जितना हो सके उतना विवरण को देखेंगे। But it's very, very important that you should have a clear understanding about our Jesus Christ. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक स्पष्ट समझ होना। Okay, so it's your questions were all very, very good, and hopefully all of you will receive your answers this week and next week. तो आपके सवाल सारे ही बहुत ही अच्छे थे। आशा करते हैं कि आपके सारे सवाल का जवाब इस सप्ताह और अगला सप्ताह आपको मिलेगी। Okay, now we will get into the doctrine of Word of God. अभी हम जो है परमेश्वर के वचन के सिद्धांत में जाते हैं। So we all like to read books. Not we all, some of us like to read books. हम में से कुछ लोग जो है किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। Some of us like to read story books. हम कुछ लोग जो है कहानी के किताब पढ़ना पसंद करते हैं। Some of us we like to read scientific books. कुछ लोग जो है विज्ञान से संबंधित पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं। So we are all, as human beings, we are all readers and writers. मनुष्य होने के नाते हम जो है पाठक, पढ़ने वाले और लिखने वाले लेखक बनते हैं। In the same way, the Israelites in the Bible times, they were also a highly learned, educated people. तो इसी प्रकार से बाइबल के समय में इजरायली भी जो है बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित थे। They wrote many books. उन्होंने बहुत किताबें लिखे। In the Bible, we see some examples of the books they wrote. हम बाइबल में जो है उन उदाहरणों को देखेंगे जो उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। Let's look at Joshua chapter 10, verse 13. आइए देखते हैं यहोशू 10वां अध्याय का 13 वचन। There's a book mentioned in that particular verse. उस वचन में एक किताब के बारे में बताया गया है। Let's read the verse, Joshua 10, verse 13. आइए उसको वचन को पढ़ें। यहोशू 10:13 वचन। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। So here there's a mention about a book called Book of Jashar. तो यहाँ एक किताब के बारे में लिखा गया है, याशार नामक पुस्तक। So this was a book which the Israelites wrote in those days. ये वो बुक है, किताब है जो इस्राएलियों ने उन दिनों में लिखा। In the same way, let's look at one more example. आइए और एक उदाहरण को देखते हैं। Numbers chapter 21, verse 14. गिनती 21 का 14 वचन। We'll not read the entire verse, हम पूरे वचन को नहीं पढ़ेंगे। but there's a book mentioned over there in that verse. Can you give me the name of that book? सुपर
बेबाहिब। Numbers 21, verse 14. इस कारण यहोवा के संग्राम का नाम पुस्तक इस प्रकार लिखा है। That's what it's. Book of the wars of the Lord. संग्राम का पुस्तक। Now, this also was a book which the Israelites wrote in those days. ये भी जो है इसराइलियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। So, why does the Bible not contain all those books? क्यों बाइबल में ये सारे पुस्तक नहीं है? In the Bible, we have, some specific books. Book of Jashar is not there in the Bible. बाइबल में हमारे पास कुछ विशेष पुस्तक है। याशार के जो पुस्तक है हमारे पास बाइबल में नहीं है। In the same way, this book of the wars of the Lord, that's not there in the Bible. प्रभु का संग्राम का पुस्तक जो है वो भी जो है बाइबल में नहीं है। So, why were all those books not mentioned in the Bible? क्यों ये सारे पुस्तकें बाइबल में नहीं लिखी गई? God decided which books should be put inside the Bible. परमेश्वर ने इस बात के निर्णय लिए कि कौन से पुस्तक को बाइबल में रखा जाना चाहिए। God chose some specific people and he anointed them. परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुने और उन्हें अभिषेक किए। He told them that to write certain things in those books. उन्होंने उनसे बताया, परमेश्वर ने उनसे बताया कि कुछ चीजों को जो है उस पुस्तक में लिखें। And only those books became sacred scripture. और वही पुस्तक जो है पवित्र वचन बने। So book of Jashar was not a sacred scripture. इसलिए याशार का पुस्तक जो है पवित्र वचन नहीं है। In the same way, book of the wars of the Lord was not a sacred scripture. इसी प्रकार से प्रभु का संग्राम का पुस्तक जो है वो भी जो है पवित्र वचन नहीं है। In your page 8 of your Hindi textbook, you will see this word canon. तो आप आपका हिंदी नोट्स में 8वां पेज में आप देखेंगे कि इस शब्द को कैनन शब्द। That word canon, it's talking about divine scripture. कैनन जो यहाँ शब्द लिखा गया वो जो है एक दिव्य वचनों के बारे में लिखा गया है। That first sentence over there, your heading will say, I think Pavitra canon or something is the heading. पवित्र शास्त्र का कैनन। If you can read out that first line in Hindi, which is written over there. पवित्र शास्त्र का कैनन सभी पुस्तकों की सूची का उल्लेख करता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर पवित्र शास्त्र के रूप में मान्य किया गया है ताकि वे बाइबल में रहे। So only those books which are included in the Bible as sacred scripture, जो वही पुस्तक जो है बाइबल में दी गई वो जो है पवित्र वचन के तौर पर, they are called canonical books. उन्हें ही जो है कैनोनिकल पुस्तक कहते हैं। Okay, all the other books which the Israelites wrote, और इजरायलियों ने बाकी जो पुस्तकें लिखी थी they are not canonical scripture. वे जो है कैनन के वचन नहीं थे। They are not inspired scriptures, inspired by God. वे जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा दी गई वचन नहीं है। They are just ordinary books written by talented people. वे जो है एकदम कौशल से भरा हुए लोगों द्वारा लिखी गई साधारण पुस्तक है। Okay, they are ordinary books. They are not divine scripture. वे साधारण पुस्तक थे, वे जो है ईश्वरीय दिव्य पुस्तक नहीं थे। So we will look at how the Old Testament was formed and how the New Testament was formed. हम ये देखें कैसे पुराना नियम बनाया गया और नया नियम किस प्रकार से बना। Okay, so let's start with the Old Testament. आइए पुराना नियम से शुरू करते हैं। God chose many different prophets. परमेश्वर ने जो है कई सारे अलग अलग भविष्यवक्ताओं को चुने and each of those prophets wrote different writings under the inspiration of the Holy Spirit. और उनमें से अलग अलग जो भविष्यवक्ता जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उन्होंने लिखे। So Moses was inspired by God to write the first 5 books. मूसा जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाकर पहले 5 पुस्तक को लिखा। And then he dies. After he dies, Joshua is made the leader. और उसके मरने के बाद यहोशू वहाँ इजरायलियों का अगुवा बना। And Joshua, he adds some details which Moses did not know when he was alive. जब मूसा जीवित था वो जब जानता नहीं था उन सारे जानकारी को यहोशू ने जोड़ा। So in the first 5 books, Joshua explains about how Moses died. तो पहले 5 chapters. I think it's in one of the first 5 books, it talks about the death of Moses. Moses did not write that, right? Because he was dead.
तो हम देखते हैं पहला पुस्तक में जो है ये मूसा के मृत्यु के बारे में लिखा है, वो जो है यहोशू के द्वारा लिखा गया है। So, these writings which, were inspired by God, ये जो लिखा गया वो ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाकर लिखा गया है। people who have been appointed by God would have put all these writings together in a particular order. तो ये जो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के द्वारा इसको जो है क्रम अनुसार रखा गया। So God would have told, put these writings first, put these writings next. So he has, inspired and anointed some people to arrange all these writings in a particular way. परमेश्वर ने ऐसा कहा कि इसको इस किताब को यहाँ रखो, इस किताब को यहाँ रखो, इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें प्रेरणा देकर इस प्रकार से क्रम अनुसार उन्हें बनाए। So a lot of people were involved in the formation of the Old Testament. ये पुराना नियम को बनाने के लिए बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित किए गए। There are some people who did the actual writing. कुछ लोग जो है इसका असली का जो लिखा ये लेखन है उसको किए। Some people did the collecting and arranging. कुछ लोग जो है उसका संस्करण किए, इकट्ठा किए और उसको क्रमानुसार बनाए। Some people would have added extra details. कुछ लोग जो है उसका अतिरिक्त जानकारी को जोड़े होंगे। Like, Joshua would have put details about Moses' death after Moses' death. तो यहोशू जो है मूसा के मृत्यु के बारे में उनका मृत्यु के बाद जोड़ा होगा। So like this, many different people were involved in the formation of the Old Testament. तो इस प्रकार से जो है पुराना नियम को बनाने के लिए कई सारे लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। So we have important prophets like Isaiah and Jeremiah who also wrote. हम देखते हैं कि हमारे पास जो महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता जैसे कि यशायाह, यिर्मयाह है वो भी लिखे हैं। In Jeremiah chapter, okay, if someone can read out Jeremiah 30 verse 2. कोई पढ़े यिर्मयाह के 30वां अध्याय के दूसरा वचन। यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 2 30। Yeah. इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। See, God gave him a instruction and told him, write in a book all the words that I have spoken to you. यहाँ देखो परमेश्वर यिर्मयाह को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी वचन मैंने तुम्हें कहा है वो सारे पुस्तक में लिखो। So God decided who will write, what they will write, and in what order these writings will be organized. और परमेश्वर ने निर्णय किया कि कौन लिखेंगे, क्या लिखेंगे और किस क्रम के अनुसार ये लेखन होगा। The last prophet, in the Old Testament whom we see is Malachi. तो पुराना नियम के आखिरी भविष्यवक्ता जिन्हें हम देखते हैं वो जो है मलाकी। There's a warning which God gives in the book of Proverbs. परमेश्वर जो है नीति वचन के पुस्तक में एक चेतावनी देते हैं। Because the people of Israel were going deeper and deeper into sinful life. क्योंकि इजरायली लोग जो है गहराई और गहराई से पापमय जीवन में जा रहे थे। And so at that time, God gives a warning in the book of Proverbs. उस समय परमेश्वर नीति वचन के पुस्तक में चेतावनी दे रहे हैं। Proverbs chapter 1 verses 28 to 30. नीति वचन पहला अध्याय का 28 से लेकर 30 तक के वचन। Yeah, you can read उस out. समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। So God says a day will come when I will not talk to you anymore. परमेश्वर बता रहे हैं कि ऐसा एक दिन आएगा मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। You will ask me questions in that day and there will be no answer because I would have stopped talking. उस दिन तुम सवाल पूछोगे लेकिन तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बात करना बंद कर दिया हूँ। So there was a time period when the prophets of God were going on telling the words of God. तो ऐसा समय था परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता लोग जो है परमेश्वर के वचन को लगातार बोलते जा रहे थे। And then finally a day came when God stopped speaking through the prophets. आखिर में ऐसा एक समय आया परमेश्वर जो है अपने भविष्यवक्ताओं द्वारा बात करना बंद कर दिए। The last prophet through whom God spoke was Malachi. और आखिरी भविष्यवक्ता जिसके द्वारा परमेश्वर ने बात की है वो है मलाकी। And then after that there was 400 years
and in history they call it the silent years. और उसके बाद 400 साल जो है, जो इतिहास में बताया जाता है कि चुप या तो शांत वर्ष। During those years, there was no inspired prophet telling what God is saying. उन सालों में जो है कोई भी ऐसा प्रेरणा पाया हुआ भविष्यवक्ता नहीं था परमेश्वर का बात बताने के लिए। And then after 400 years of silence, another prophet rose up. और 400 साल के बाद ये जो शांत के समय खत्म होने के बाद दूसरा एक भविष्यवक्ता उठा। Who do you think that was? What is the name of that prophet? उस भविष्यवक्ता कौन होगा? Exactly. John the Baptist is the next prophet inspired by God, speaking the words of God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो अगला भविष्यवक्ता जो परमेश्वर द्वारा प्रेरणा पाकर परमेश्वर के बातें कह रहा था। His words were so powerful that people would come into the desert just to listen to him. उसके शब्द इतना सामर्थ्य थे कि लोग जो है जंगल में आते थे उसके सुनने के लिए। So during the silent years, there was nobody who could speak with that kind of power, with the anointing of God. तो उस समय जो शांत के समय में जो है कोई भी ऐसा नहीं था जो उस सामर्थ के साथ, उस अभिषेक के साथ बात करें। So all the writings which were done by the Old Testament prophets, they are accepted as divine scripture. तो सारे जो पुराने में भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई सारे लेखन को जो है पवित्र वचन के तौर पे माना गया। Just a minute, my tab is again having its problems. Just give me a minute. So during the silent years, people continued to write. तो उस शांत के समय भी जो है लोग जो है लगातार लिखते थे। But those books were not inspired. लेकिन वे किताबें जो है प्रेरणा से नहीं हुई थी। Because they are just talented people writing their stories, writing their opinions. क्योंकि उनके अंदर ये प्रतिभाएं थी, वो कहानियां लिखे और चीजों को लिख रहे थे। Okay, so if my notes can open up. Very sorry, this no, suddenly it happens. Okay. So where were we? Silent years. Yeah. So during the silent years, the Jewish people were scattered over many different places. तो ये शांत के समय जो था उस समय जो यहूदी लोग जो है अलग अलग लोगों जगह पर तितर बितर हो गए थे। Because if you remember your Old Testament, the Babylonians come and conquer Jerusalem. तो यदि आपको याद है तो बेबीलोन के लोग जो है यरूशलेम को आकर जीत लिए थे। And they take away the Israelite people as slaves to Babylon. उन्होंने इजरायली लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन लेके चले गए। And from Babylon, the Israelites, some of them moved to Persia. वहां बेबीलोन से लेके कुछ इजरायली जो है पर्शिया चले गए थे। And then there were some who went to Egypt. कुछ लोग जो है मिस्र देश चले गए। So the Israelite people were scattered over different places during that time. उस समय में इजरायली लोग जो है अलग अलग जगहों में वे तितर बितर हो गए थे। And then King Cyrus gives permission to the Israelites to come back to Jerusalem. तब जो है खुसरू का राजा जो है
इसराइलियों को यरूशलेम वापस आने के लिए आज्ञा देता है। But only some people choose to come back to Jerusalem. लेकिन कुछ लोग ही जो है यरूशलेम आने का चुनाव किए। Many people continue to live in Babylon, in Persia, in Egypt. कई सारे लोग जो है बेबीलोन और मिस्र देश और पश्चिम में रहने का चुनाव किए। So those people living in those places, they continue to write different books. तो वहां के रहते हुए वो लोग जो है लगातार अलग किताबें लिखते रहे। Some of those books became very popular. उनमें से कुछ पुस्तकें जो है बहुत ही प्रचलित हो गई, तो प्रसिद्ध हो गई। There was something called Book of Tobit, एक किताब का नाम है जो तोपेत, Book of Judith, जूडित का किताब, Book of Sirach. सैराश का पुस्तक। Okay, so like this, many different popular books were written during those silent years. उस जो शांत के समय में जो है इससे बहुत ही प्रसिद्ध किताबें लिखी गई। These books created a problem later. ये सारे पुस्तकें जो है बाद में समस्या को उत्पन्न की। Okay, we'll talk about that when we come back from the break. इसके बारे में हम ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे।